دمک کم کر دیں اس کی بالکل. گرامی قدر حضرات، قبل اس کے کہ میں اللہ آپ کو عزت بخشے، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے برادر طریقت ہمارے محترم و مکرم حضرت علامہ مولانا غلام حسین صاحب قادری اتاری رضوی کا، جن کا پیغام ملا کہ آپ نے یہاں پر آنا ہے اور اپنا سبق سنانا ہے. دیے گئے وقت سے ہم تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ آپ کے پاس پہنچے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر بھی دوستوں نے کافی لیٹ کیا. اب ثنا خان زیادہ اکٹھے ہو گئے اور وہ کہتے تھے کہ ہماری 2 منٹ کی حاضری لگوا دیں. 2 منٹ میں وہ 10 منٹ پھر اپنی طرف سے ڈالتے تھے، اور پھر آپ سمجھتے ہیں جب میٹھا بڑھتا جائے تو گڑ بھی بڑھتا جاتا ہے. تو بہرحال ہم نے یہ، حضرت شاہ صاحب میرے ساتھ تھے، ہم نے بھی ان کو صرف آدھا گھنٹہ ہی سبق سنایا ہے. میں نے کہا آج کے لیے آپ کو یہی لنگر ملے گا، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا ہے. آئندہ سے وہ بھی احتیاط کریں گے، نہیں تو پھر ہم احتیاط کریں گے. دونوں میں سے ایک بندہ تو کرے گا نا جی. بہرحال میں حاضر خدمت ہوں، میں آپ کو سبق سناتا ہوں. آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی مل سکے. ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کروں. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں خلاق عالم نے ارشاد فرمایا وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، فرمایا وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، فرمایا وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ سادہ سا مفہوم ہے اس آیت طیبہ کا. پڑھے لکھے حضرات آپ تشریف فرما ہیں. یہ جو آیت کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے یہ ہوا سے اس کی یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، اور عربی کے اندر یہ ضمیر ہوتی ہے. اس ضمیر کا مطلب، ضمیر کا معنی ہی ہوتا ہے، کہتے ہیں نا اپنے ضمیر کو جگاؤ. ضمیر چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. یہ ہوا میں کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے. بھائی وہ کون ہے؟ جو نہیں فرما رہے فرانٹ سیٹو والے ذرا دھیان فرمائیں گے. بھائی یہ کون ہے جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے؟ تو یہ ہوا کی ضمیر ہے. ضمیر میں وہ اس کا مرجع ہے، وہ چھپی ہوئی چیز وہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذات خدا بھی ہے اور ذات مصطفیٰ بھی ہے. آواز کمزور والی ہے، تقریر شروع ہو چکی ہے. سٹیج والے بھی بول سکتے ہیں، رش کافی ہے، موبائلوں سے نکلیں گے ذرا ہے، موبائل جیبوں میں ڈالو ورنہ میں یہاں سب کے جمع کر لوں گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ بہت دور بندے کو لے جاتے ہیں. آپ اللہ کے بندو یہاں آئے ہو محفل میں سننے کے لیے تو مہربانی کرو آپ سنو تو صحیح نا. وہ آپ نے بتانا ہے جڑا کو موبائل والا ہوئے تو میں دسنا موبائل آپ لائے جانے اکٹھے کر کے. ٹھیک ہے، دھیان فرمائیے سارے حضرات. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی. کون ہے؟ ائمہ تفسیر کہتے ہیں اس کا جو اشارہ ہے، جو اس کا مرجع ہے، فرمایا وہ ذات خدا بھی ہے اور ذات مصطفیٰ بھی ہے. یعنی اللہ کے بارے میں یہ ہے اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. اور اسی طرح حضور کے بارے میں ہے. سمجھ آئی؟ اسی طرح کا مطلب کہ یہ اشارہ، یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ یہ حضور کی بات ہو رہی ہے کہ حضور اول بھی ہے، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں، اور ہر چیز کا اللہ کی عطا سے جاننے والے بھی ہیں. اب یہ جو میں آپ کی خدمت میں بات کہہ رہا ہوں، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ علماء تفسیر نے اس کو بیان کیا ہے. اور اگر آپ مدارج النبوہ کا خطبہ اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر شیخ محقق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بات کو لکھا ہے. فرماتے ہیں یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی شان کا بھی سمندر ہے اور مصطفیٰ کی رسالت کا بھی سمندر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں یہ وہ آیت ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کو بھی بیان کیا گیا ہے اور میرے رب کی توحید کو بھی بیان کیا گیا ہے. آواز سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اچھا میرا خیال ہے آپ کئی ٹس سے مس نہیں ہوئے. میں نے جس کا حوالہ دیا یہ کوئی جمعرات والا دن ختم پڑھنے والا مولوی نہیں ہے.
ये मामूर मिनर रसूल फिल हिंद हैं। आका करीम ने इनकी जिम्मेदारी लगाई थी कि आप यहाँ पर आए और मेरे दीन का काम करें। और इन्होंने कहा था कि यहाँ तो मैं इसलिए आया था कि हर रोज आपके रोजे को देखता हूँ तो मेरे सारे दुख खत्म हो जाते हैं, वहां क्या करूंगा? फरमाया यहाँ कब्र को देखता है, वहां कब्र वाले को देखेगा। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं। ध्यान फरमाएंगे आप हज़रात। तो ये शेख मौके की बात हो रही है। और जिस किताब का हवाला दिया बाबा, किताब भी आम नहीं है, ये वही किताब है जिसके बारे में सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह से जब कहा गया कि आप भी कोई सीरत पर किताब लिख दें, तो आपने फरमाया था शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस से देहलवी की किताब के होते हुए सीरत पर किताब लिखने की जरूरत ही नहीं है। सारी किताब इश्क़ रसूल में डूब कर लिखी गई किताब है। आवाज समझ आ रही है आप सभी हजरात को? ये वो किताब है जिसका मैं हवाला दे रहा हूं और इसके अंदर आपने लिखा है। और ये जो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी है ना, इनको शेख मुहद्दिस अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी तो कहते हैं ये मुहक्किक अलल इतलाक का दर्जा भी रखते हैं। समझ आ रही है? मुतलकन इसको सारे मुहक्किक मानते हैं। और देवबंदी वापी लोग भी कहते हैं ये हमारे हैं, हम इनको मानते हैं। मैंने कहा हमारे हैं वाली बात तो समझ नहीं आती। मानने के लिए कई लोग कह देते हैं, लेकिन मानो तो समझ आ रही है? मानोगे तो इसके रसूल आएगा। और आला हज़रत जब इनको याद करते हैं तो सिर्फ शेख मुहक्किक आप ये नहीं फरमाते, आप फरमाते शेखुल हिंद। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह इस लफ्ज़ से याद करते हैं। ये शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह ताला अलैह शेखुल हिंद मुहक्किक अलल इतलाक, आपने इस बात की तसरीह फरमाई। आप फरमाते हैं कि ये हुआ का मर्जे जाते खुदा भी है और जाते मुस्तफा। अब समझ आ गई आप सभी हजरात को? अगर ये आपको समझ आ गई तो आप आइए जरा इस आयत के दामन से कुछ फूल चुन लेते हैं ताकि हमारा अकीदा भी दुरुस्त हो सके और हम इतनी देर बैठे हैं कुछ ना कुछ फूल अपनी झोली में भी लेके जा सके। तवज्जो कीजिए। अगर इससे मुराद अल्लाह की जात हो, जैसे उलमाए तफसीर ने बयान किया है, तो वो पहली तफसीर कहलाएगी। और उसका क्या मतलब है? हुवल अव्वल, अल्लाह अव्वल है। हुवल आखिर, वो आखिर भी है। बात बिल्कुल ठीक है, अल्लाह अव्वल भी है और आखिर भी है। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये बात बड़ी समझने वाली है। आप तफसीर सिरातुल जिनान उठा के देखें ना, तो मेरे शेखुल हदीस, मेरे उस्ताद गिरामी जिनसे मैंने तफसीर बेज़ावी पढ़ी है और सिराजी पढ़ी है, अल्लामा शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद कासिम रजा अत्तारी साहब, आपने भी सिरातुल जिनान के अंदर ये लिखा है, फरमाया कि अल्लाह अव्वल है। तो इसका मतलब क्या है? फरमाया इसका मतलब ये है कि मखलूकात से पहले रब है। यानी ये पैदा हुई ना, पैदा इनकी इब्तदा हुई, तो इनकी इब्तदा से भी पहले जो जात है वो रब की जात है। अब यहाँ पर ये बात, ये मोड़ में इसलिए समझा रहा हूं, को ये ना कहे कि जैसे मखलूकात को पैदा किया तो उससे पहले रब को किसी ने पैदा किया। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में अहले सुन्नत का ये नजरिया है, अल्लाह ताला अज़ली है, अबदी है, मुस्तक़िल बिज़ात है, वो गैर मुतनाही है, वो गैर फानी है। समझ आ रही है? वो जिस्म जिस्मानियात से भी पाक है, वो मकानो मकानियात से भी पाक है, वो हमेशा से है, हमेशा से रहेगा। बहुत कमजोर है, ये सुनियो, अपनी कमजोरी दूर करो। जब तुम्हारे बाप पीर और मुर्शिद की बात है तो बड़ा बाबा बा करते हो, रब के लिए तुम्हारे अबू जी ने नहीं करना। हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। अपने आप को तगड़ा करो जरा थोड़ा सा, और टेक छड़ सोने या टेक छड़ के बैठ, नाराज ना होना जरा। ये रब की बात हो रही है, जिसको भी इज्जत दी है मेरे रब ने अता फरमाई है। समझ आ रही है? अल्लाह अव्वल है, इसका मतलब ये है अल्लाह ही अव्वल है जिसने मखलूक को पैदा फरमाया है। अल्लाह ही अव्वल है जिसने मखलूक को रिज़्क़ अता फरमाया है। अल्लाह ही अव्वल है जिसने सबको अता फरमाया है। इस एतबार से यानी खालिक अव्वल अल्लाह है, राज़िक़ अव्वल अल्लाह है। अब समझ आ रही है? हाँ, बाकी जो कुछ है वो अल्लाह की अता से है, असल में अव्वल अल्लाह ही है। अब बात समझे आप सभी हज़रात? तो ये इन मानो करके अल्लाह अव्वल है, यानी जब मखलूकात पैदा हुई तो मखलूकात से पहले जिसने पैदा किया वो कौन है? वो अल्लाह है और वो अव्वल है। अब आ जाइए, अल्लाह आखिर भी है, तो फिर अल्लाह के आखिर होने का क्या मतलब है? ये भी कुरान मजीद में मौजूद है। फरमाया कि जब सारी कायनात को अल्लाह फना देगा, फना, समझ आ रही? उस वक्त क्या होगा? ये जो मौत का फरिश्ता है ना, इसको भी मौत आ जाएगी। यहां तक कि हजरत इसराफील जो सूर फूंकेंगे उन्हें भी मौत आ जाएगी, मौत को भी मौत आ जाएगी।
समझ आ रही मेरी बात की? उस वक्त मेरा रब फरमाएगा, ये कुरान मजीद में है, फरमाया लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज कौन बादशाह है? सारी दुनिया फना है, सिर्फ रब की जात बाकी है। और अल्लाह फरमा रहा है बताओ कौन है। अब ये क़यामत वाले दिन होना मेरा रब पहले ही बता रहा है। समझ आ रही है? ये आखिर होने का मतलब है। अल्लाह फरमाएगा बताओ कौन है बादशाह, कोई नहीं बोलेगा। और रब खुद फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, फरमाया अगर आज बादशाह है तो वो है जिसका नाम अल्लाह है, वो वाहिद भी है और कहार भी है, क्योंकि उस वक्त इजहार कहारियत का होगा। समझ आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे, जरा तकड़े होके बैठिए। तो इन मानों करके अल्लाह आखिर है, यानी जब मखलूक नहीं थी तब अल्लाह था तो अव्वल है, और जब ये सारी फना हो जाएगी कोई नहीं होगा, रब होगा, अब आखिर है। समझे आप सभी? ये है अव्वल और ये है आखिर, इन मानों करके। अब वो जाहिर भी है और बातिन भी है। तो जाहिर कैसे? जाहिर का क्या ये मतलब है कि कहीं है तो चल के देख आए। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई ना। 5 किलो का सरे अकदस हिलाने से तो बात नहीं ना बनने वाली, ये तो टके की ज़बान पाक हिलाने से बात बनने वाली है ना। अल्लाह की तौहीद को सुनकर जरा अपने अंदर जुर्रत पैदा करो। समझ आई है? अब ये सुनो, अल्लाह ज़ाहिर है, मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है जैसे कौमे मूसा ने कहा था आरिन अल्लाह, हम अल्लाह को देखना चाहते हैं, बताओ अल्लाह का है, हम देख क्या। बल्कि इसका मतलब ये है अल्लाह ताला की कुदरत के जलवे जाहिर हैं। मैंने कहा अल्लाह ताला की कुदरत के जलवे जाहिर हैं, जो कि इस बात पर दलालत करते हैं कि रब है। ये इसका मतलब है। अगर आप चाहें तो आपको मिसाल दे सकता हूं, अगर आप चाहें तो फ्रंट सीटों वाले जरा ध्यान फरमा सकते हैं। चलिए आपको मिसाल दे देते हैं। देखिए अल्लाह ताला की कुदरत पर, अल्लाह की कुदरत के नजारे दलाइल मौजूद हैं। उनमें से एक दलील अल्लाह का कुरान है। सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा? एक दलील अल्लाह का कुरान है। आप कहेंगे वो कैसे? ये जाहिर होने का कैसे मिस्दाक है, मजहर है? मैंने कहा इसलिए कि जब कुरान मजीद को नाजिल किया गया ना तो काफिरों ने कहा था कि ये हादा कलामुल बशर, कि ये बशर का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हमसे फरमाया था, तवज्जो है समझ रहा आपकी? अल्लाह फरमाता है इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अब इसका तर्जुमा भी समाअत फरमाएं। अल्लाह ताला फरमाता है ऐ काफिरों, अगर तुम शक करते हो उस चीज में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया, समझ आई? यानी कुरान में अगर तुम्हें शक है कि ये हमारा कलाम नहीं है, तुम्हें शक है कि ये बंदे का कलाम है, तो जो नहीं कर रहे, अगर इस बात का तुम्हें शक है तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर ऐसे करो ना, फातू बिसूरत मिन मिस्लिही, इस कुरान जैसी एक सूरत तो बना के दिखाओ ना जरा। टोपी वाले गोटे छाड़ के बैठ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आपको कह रहा हूं बेटे, आपको, आप पीछे क्या देख रहे हैं? पीछे कोई और बैठा? बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। हम चुप शाहों में तकरीर करने वाले नहीं हैं, उन शाहों में करते हैं जो नेज़ों पे चढ़ के भी सुभान अल्लाह कहते रहते हैं। इमाम पाक बोले थे ना नेज़े पर, तो उनके गुलाम रोटियां खा के क्यों हराम करते हैं? तुम भी तो बोलो ना सारे प्यार के साथ। ध्यान कीजिए जरा, गिरामी कदर हज़रात, ये इसका मतलब है अल्लाह की कुदरत के जलवे जाहिर हैं। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम कहते हो, तुम्हें शक है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो फिर इस जैसी एक सूरत तो बना के दिखाओ। और साथ ही चैलेंज भी कर दिया, फरमाया चैलेंज तुम्हारे लिए ये है कि तुमने इसको बनाना है और जितने भी तुम मददगार समझते हो उन सबको तुमने बुलाना भी है। अल्लाह के अलावा जिसको चाहो बुलाओ, और ये काफिरों के लिए है। फरमाया कि तुम कुरान जैसा कभी कुरान बना सकते नहीं, लम तफालू वलन तफालू। अल्लाह फरमाता है ना तुम ये कर सकते हो और हरगिज़ नहीं कर सकते हो। ये अल्लाह के जाहिर होने पर दलील है। देखो ये काफिरों ने, ये अंग्रेजों ने हर चीज बना ली है। हमने ये बिल्डिंग बना ली, ये जहाज बना लिया, ये मोबाइल बना लिया, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि तुम सारे मिल जाओ, कुरान जैसी एक सूरत बना के दिखाओ, तो बनाए ना एक सूरत इन्ना तो इना कल कौसर जैसी। जिंदा जिंदा बंदे बोले, जिंदा जिंदा बंदे बना सके। ये अल्लाह के
तवज्जो है समझ रात की? ये जाहिर होने का मतलब है। और यहाँ पर अगर आप थके नहीं हैं तो एक बात आपको और भी सुना दो। अगर थके नहीं है तो फिर आपको सुना देते हैं, और सुनिए वो बात क्या है, और इस बात को भी ज़हन नशीन फरमाइए। गिरामी कदर हजरात, आप देखें ना, अंग्रेज को नेशनल ज्योग्राफिया चैनल है, आप उसको देख के हर किस्म के जानवर को ढूंढते हैं, वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, सबके, बल्कि यहां तक चिऊंटी, साड़ी पंजाबी कहते हैं कीड़ी, ठीक है, कीड़ी चिऊंटी होती है ना, उसकी बिल में चले जाते हैं, साड़ी पंजाबी कहते हैं खोड, समझ आ रही है? उसकी बिल में कैमरा दाखिल कर दिया कि वहां चिऊंटियां कैसे रहती हैं। हाँ, जानवरों के पेट के अंदर कैमरे दाखिल कर देते हैं, ऐसा ही है ना जी। बड़ी गहराई तक, समंदरों की तहों तक पहुंच गए। बड़ी बात है भाई, आपको अर्जी का सैयारों में हम पहुंच गए। अच्छा, फिर हम क्या करें? वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के जाहिर होने पर मैं दलील दे रहा हूं, अल्लाह करके आपको समझ आ जाए। हर जगह पर ये पहुंच के देखा क्या हो रहा है, बता दिया। मैंने कहा आज तक कोई अंग्रेज ये जुर्रत कर सका है कि मुर्दे को जब कब्र में दफन कर दिया तो वहां कैमरा लगाऊं और बताऊं कि क्या होता है? कहता है नहीं। तो मैंने कहा इनको चाहिए था ना, आज तक दिखलाते ना, आज तक दिखलाते कब्रों में क्या होता है। कह रहा ये तो नहीं दिखला सके। मैंने कहा ये भी रब के जाहिर होने पर दलील है। उसने क्या दिया, ये चीजें हमने छुपा ली है, ये किसी और को नजर आ ही नहीं सकती। तवज्जो नहीं ना फरमा रहे, और आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है, आप इस बात को थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके। एक अंग्रेज ने एक मर्तबा ये जसारत की थी, उसने कैमरा लगाया था कब्र के अंदर, तो बड़ा छुप के बैठ के जब देखने लगा तो कहता है एक ऐसा मंजर आया कि वो पूरी बिल्डिंग गिरी और जितने बैठे थे सारे गर्क हो गए, वो देख ही नहीं सके थे। आज तक कोई दिखाए ना, मंजर दिखाते हैं, समंदर में ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, हवाओं में ये हो रहा है, फुला हो रहा है, बता कब्रों में क्या हो रहा है। कहता है ये तो नहीं पता चलता है। मैंने कहा बस जवाब दे गई तेरी हर शय नहीं, तवज्जो फरमा रहे ना। मैंने कहा अब हम भी तुम्हें बता देते हैं कब्रों में क्या होता है। मेरे हबीब पाक जब आते हैं ना तो फिर दीवाने या रसूलुल्लाह के नारे भी लगा लेते। समझ आ रही मेरी बात की? ये तो जब जाओगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा ना असल हकीकत क्या है। तो आज तक इनके सामने चैलेंज है, कब्रों के हालात बताओ क्या है। मेरे हबीब ने तो बता दिया, नेक जाए तो ये, बद जाए तो ये, सारा कुछ बता दिया, तुम करो तस्दीक करो, ये तो नहीं हो सकती। मैंने कहा बस जब मुस्तफा तक नहीं पहुंच सकते, खुदा तक कैसे पहुंचोगे बाबा? समझ आई आप सभी हज़रात को? हाँ, ये है अल्लाह जाहिर है, उसके जाहिर होने पर दलाइल है भाई। समझ आ रही है? ये बहुत सारे हैं, लेकिन इशारा देना था। वल बातिन फरमाया, वो बातिन भी है। इसका तर्जमा करते हुए तशरीह उलमा फरमाते हैं बातिन का मतलब ये जितनी चीजें होती है ना, कहते हैं ये बादाम खाओ तो ये बंदे को ताकत देते हैं, तो ये ताकत इसमें किसने रखी है? तो कहा ये अल्लाह की कुदरत इसमें बातिन है। ये जितनी तासीर है ये रब ने रखी है, मतलब है बातिन होने का। ये फलां जड़ी बूटी खाओ तो तुम्हारी सेहत ठीक हो जाएगी। समझ आ रही है? इलायची खाओ, दालचीनी खाओ, लौंग खाओ, ये होगा। तो भाई क्यों होगा? कहा अल्लाह की कुदरत ने अपने जलवों को इनमें बातिन कर दिया। सुभान अल्लाह। जलवों का इजहार हो रहा है। अब बात समझ आई कि कोई नहीं? और जब अल्लाह की कुदरत के जलवे जाहिर हो ना तो फिर वो अपनी असर को जाहिर करते हैं, वो जो खाता है उसी पर। तो यहां पर मैं एक बात बता दूं, इसीलिए लंगर के ऊपर हम कलामुल्लाह पढ़ लेते हैं ताकि इसमें भी एक तासीर आ जाए। बेईमान ना खाए, ईमान वाला ही खाए ना। हालांकि बज़ाहिर तो नजर नहीं आता, बल्कि तो मैंने नहीं खाना है। मैंने कहा ये तासीर है, बातिन है। समझ आ रही है आपको? मैं तो नियाज की कोई चीज नहीं खाता। मैंने कहा हलाल किसी किसी के लिए होता है, ये तो नहीं है खुदा के लिए। जो नहीं फरमा रहे ना यार, गौसे आजम का नाम ले दो तो हम चीज ही नहीं खाते। तो मैंने कहा गौसे आजम के गुलाम खाए, भौंकने वाले कुत्ते क्यों खाए यार? हाथ उठा के बोलो सुनिए, उसकी कुदरत के जलवे हैं, आम बंदा खा ही नहीं सकता है। सही बात है, नसीबों वाला खाता है। अब आइए जरा अगली बात भी बताऊं। और बातिन का एक मतलब ये भी है, और मैं कई मरतबा ऐसा होता है तुम अमरूद लेके भी काटो तो बीच में लिखा होता है अल्लाह। कोई फल और काटते हो बीच में से नजर आ जाता है। ये बातिन का ये भी मतलब है, तासीर भी है और नाम का इजहार भी है। अब बात समझे हो? और ये जो कुछ जितनी ताकतें हमारे पास भी हैं, आपके पास भी हैं, जो कुछ भी है, इसमें भी अल्लाह की कुदरत ही बातिन है। समझ आ रही है?
بات کی حقیقت میں وہی ہے، بس اظہار لوگوں سے ہو رہا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. یہ ہے ظاہر ہے، باطن ہے، اول ہے، آخر ہے. سمجھے ہو؟ اب آگے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. حقیقی طور پر علم ہے ہی اللہ کا. سمجھ آ رہی ہے؟ دیٹس اوکے، اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں. لیکن آپ آئیے دوسری تفسیر بھی کر لینا. اور میں اسے مراد حضور کی ذات بھی ہے. تو اگر حضور کی ذات ہو تو پھر اول کا کیا مطلب ہے؟ حضور اول ہے تو کیسے؟ سارے ہلانے سے بات نہیں بننے والی میرے بیٹے. والیوم آنا چاہیے نا، اس بات کو سمجھیے. حضور اول ہے تو کیا مطلب ہے؟ اس کا پہلا معنی جو علماء نے لکھا ہے نا وہ یہ ہے، فرمایا مخلوقات میں اللہ نے سب سے پہلے جس کو پیدا کیا تھا وہ تیرے اور میرے نبی کا نور تھا. یہ مطلب ہے حضور کے اول ہونے کا. ایک یہ ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. بس مخلوقات میں سب سے پہلے جس کو پیدا کیا وہ تیرے اور میرے نبی ہیں، اس اعتبار سے اول ہیں. اگلی بات، عالم ارواح کے اندر جب اللہ نے نبوت عطا کی تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبوت عطا کی. یہ میں عالم ارواح کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں آ کے 40 سالوں کے بعد اظہار کی بات میں نہیں کر رہا، ٹائم اور ہوتا ہے. اسی واسطے تو میرے حبیب پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا متى وجبت لك النبوة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کب سے نبی تھے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا پتا، یا یہ نہیں فرمایا 40 سالوں کے بعد. حضور نے فرمایا كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کے درمیان تھے. اس اعتبار سے بھی حضور اول ہیں. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے. نمبر 3، عالم ارواح کے اندر جب اللہ نے روحوں کو اکٹھا کیا اور اسے پوچھا الستو بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں. الیواقیت الجواہر کے اندر علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس بات کو لکھا ہے. روض الریاحین کے اندر یہی مسئلہ موجود ہے. ازالۃ الخفا کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہی مسئلہ لکھا ہے. فرماتے ہیں جب روحوں سے پوچھا تو سب سے پہلے جو روح بولی تھی وہ محمد مصطفیٰ کی روح تھی. لیکن لگے ہاتھوں یہ ایک مسئلہ اور بھی سماعت فرما لیجیے اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو. سنا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہیں. یہ فیضان صدیق اکبر نامی کتاب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آقا کریم نے پوچھا بتاؤ جب اللہ نے روحوں کو اکٹھا کیا پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب کوئی نہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، روحیں بولی تھی. فرمایا کسی کو یاد ہے؟ صدیق اکبر کہنے لگے مجھے یاد ہے. آپ نہیں آئے صدیق کے نام پہ جیسے آنی چاہیے تھی. صدیق اکبر نے فرمایا مجھے یاد ہے. کہا کیسے؟ فرمایا مجھے یہ بھی یاد ہے روحیں اکٹھی ہوئی، مجھے یہ بھی یاد ہے. رب نے پوچھا مجھے یہ بھی یاد ہے سب سے پہلے کون بولا؟ آقا نے فرمایا کون بولا؟ فرمایا سب سے پہلے آپ بولے تھے. میرے نبی نے فرمایا لوگوں سن لو، اگر سب سے پہلے میں بولا تھا تو میرے بعد سب سے پہلے میرا ابو بکر بولا تھا. حسین صاحب نے تو اپنی ساری انرجی لگا دی، تم بھی تو کوئی حصہ ڈالو نا محبت کا.
समझ आ रही है? और मैं यहाँ पर बता दूं, चंद बिगड़े हुए लोगों के लिए मेरा पैगाम है, बंदे दे बच्चे बनो, इंसान के पुत्र बनो। बैठे हो बंदे के पुत्र बनो, आले सुन्नत के अकीदों से दाएं बाएं नहीं होना। और मुझे यहाँ पर शाबाश देनी है पीर सियाल को। हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी साहब, अभी तकरीबन 2 साल हुए आपने पर्दा, बल्कि 1 साल हुआ पहला और सभी गुजरा है। आप बैठे थे और कवाली हो रही थी। आप चिश्ती थे ना, जो चिश्तिया में कवाली का इजाजत है, उनके अपने शरायत के मुताबिक, हुदूद कुयूद के मुताबिक कवाली हो रही थी और कवाल ने पढ़ दिया दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। आपने फौरन फरमा रोको कवाल, स्पीकर मुझे दे। हमें अकीदा सिखाने के लिए ये कवाल नहीं है, उलमा है। जिसमें जितनी जुर्रत है बोले, रोटियां तो हलाल करो ना जो आप तक खाते रहे हो। आपने फरमाया बड़ा पकड़ा स्पीकर, वही कवाली बंद करवा दी। ऑन द रिकॉर्ड वीडियो मौजूद है। आपने कहा देख भाई, मैं भी हजरत अली के 18 बेटों में से एक बेटे की औलाद में से हूं, मैं अली का पुत्र हूं। मेरा भी जी चाहता है कि मैं ये नारा लगाऊं, पर मैं अगर लगाऊंगा तो अली मुझे सजा देंगे, क्योंकि मौला अली ने खुद फरमाया है जो मेरी शान बढ़ाए अबू बकर की घटाए, मैं उसको सजा दूंगा। फरमाया मेरे बाप के लित्तर, मेरे बाप की सजा कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, लिहाजा उसकी अकीदे से आगे पीछे ना हो। यही नारा लगाओ, दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। ये बिगड़े हुए पीर, बिगड़े हुए मौलवी, ये बिगड़े हुए नकीब, अब बोलो जिन्हां दे विच साह है, बोलो ओए अपना किबला दुरुस्त करो। तुम कहीं और जा रहे हो, यहां से हो के गुजरोगे तो मदीने वाला तुम्हें कदमों में जगा देगा। वरना अगर ये तरतीब बदल दी तो तुम्हें तो सबसे पहले उल्टा लिटा के छतरौल मौला अली करेंगे, और मौला अली एक जरब लगा दी ना तो तेरी नस्ल भी उठ नहीं सकेगी। सुन्नी बोले, सुन्नी बोले, सुन्नी बोले। इस वास्ते फुदकने की जरूरत नहीं है, अपनी औकातों में रहो। 1400 साल से यही मसला है, और यहीं पर बाज रूहानियां आ गए, बातनियां आ गए। चल छणकना ना होवे दा, तैनू बड़ा पता रूहानियां दा, तैनू बड़ा पता दाहरियां दा ते बातनियां दा। ये जाहिर व बातिन पूरा था, तभी तो मुसल्ला रसूल में अबू बकर आए और मौला अली पीछे खड़े हो गए। बादरी हम तो 12 इमामों से बाहर जाते नहीं। मैंने कहा 12 इमामों का जो बाप है उसका नाम अली है, और अली का जो इमाम है उसका नाम अबू बकर है। हाथ उठा के बोलो सारे, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। खैर बरकत दे, जवान बरकत हो। अल्लाह 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 आपको बरकत दे, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अब मजमे में से नारा लागे तो चास बाढ़ नहीं गई फिर है। अब जिसको जितना करंट इश्क का लगा है, जरा उस मोहब्बत से हाथ उठा के बोले ना मेरे भाई, ये क्या बात हुई? तुम्हें हम आगे पीछे होने देंगे? यह तुम्हारी भूल है। अहमद रजा का ही अदना सा नौकरी तुम्हें सर नहीं उठाने देगा। बैठे हुए अपनी औकात में रहो। आले सुन्नत का ये नजरिया है, दाएं बाएं नहीं जाना। 12 इमामों के बाप का नाम अली है, और अली के इमाम का नाम अबू बकर और उमर है। और मैं यहाँ पर एक और बात भी कह दूं आपको, ये अभी अभी हमारे भाई ने भी इशारा दिया, बहुत अच्छा शेर लिखा है आपने। हजरत उमर के बारे में भी कई गंदा अकीदा रखते हो। मैंने कहा गंदे, मुझे एक बात बता, अगर हजरत उमर फिर गए, हजरत उमर ने नबी पाक की बात नहीं मानी, हजरत उमर को ही कोई कसूर है तो बता, नबी पाक ने दुआ करके मांगा क्यों था? नहीं यार, चलते हैं चलो सारे बोल लो, फिर मैं सुना दे करके बोलो ना। वाह भाई वाह, समझ आई है? ये 3-4 बंदे बैठे हमारी कंपनी के, जो साउंड के पीछे वालों ऐसे बेटे, आज नहीं गुटखा खाने दूंगा। निकालो गुटखा छुटका, मैं भी खाली पेट तकरीर कर रहा। आपके है ना, बस ठीक है, मैं राज गया। ये सिर्फ आपको समझाना था कि अगर हम कुछ नहीं देखते, जब बात मालिकों की आए ना तो हम कहते हैं यार यहीं सांस निकल जाए तब तो कज़ाएं पूरी होगी।
खड़े हो जाएं। आपका अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है और आपका अकीदा जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल हैं। मखलूकात पैदा हुई सबसे पहले आका अव्वल, नबूवत आलम अरबा में सबसे पहले अता कर दिया ताज अव्वल। समझ आ रही है मेरी बात की? इजहार और ऐलान 40 सालों के बाद था दुनिया में आने के, ये एक मसला ही अलग है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम अरबा में बोले वहां अव्वल, और हुजूर फरमाते हैं अना अव्वलु मन तनशक्कुल कबर, फरमाया जब कब्रें खुलेगी सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, वहां भी आका अव्वल। और अगली बात पर पीछे खड़े होने वाले आशिकों से लेकर स्टेज वालों तक सारे, फरमाया अना अव्वलु शाफिउन व मुशफ़्फ़ा, फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले शफाअत भी मैं करूंगा और कबूल भी मेरी शफाअत होगी। अभी नहीं, अभी कोई शक हिस्सा डाले बगैर न रहे। मेरे आका ने फरमाया अना अव्वलु मन युहर्रिकुल बाबल जन्नह, फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले जो जन्नत का दरवाजा खटखटाने वाला है वो भी मैं मोहम्मद ही हूं। को लुत्फ आया कि कोई नहीं आया आप हज़रात को? जिसको जितना लुत्फ आया है उतने प्यार से मेरी अगली बात सुने। फरमाया हुजूर अव्वल हैं, हुण समझ आई है? अब जिसको आ गई है वो तवज्जो फरमाए। माशाअल्लाह साडा बेली आ गया, साडा यार आ गया। जगह छोड़िए भी, जगह पीछे बेटे, जल्दी करो जल्दी। अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर मकबूल अख्तरुल कादरी साहब तशरीफ लाए। मैं कल का देख रहा था कि आप आए नहीं हैं, वजह क्या है? माशाअल्लाह आज मैं बस आप मुझे जो रहते हैं बता दें, मैं वो भी बना देता हूँ। अब तो दरिया रहमत जोश में है। बोलो तो सही है, सुभान अल्लाह। मदीने जाओ, अल्लाह आपको खैर बरकत से नवाजे। माशाअल्लाह वकार साहब भी अपने पुरवकार चेहरे से आ गए हैं। तवज्जो है, आ जाओ फिर अगली बात सुनाएं। हुवल अव्वल, इसमें पहले तुम्हें तौहीद सुनाई है, अब रिसालत की बात चल रही है। हुजूर अव्वल हैं, अब पता चला कैसे अव्वल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। अगली बात भी सुनना था, अगली बात भी। हुजूर आखिर भी हैं, कैसे? फरमाया बिअसत के एतबार से आखिर है। मुश्किल लफ्ज भी सुन लिया करो कभी कभार है, चौपिशा बन के बैठ गए। बिअसत का क्या मतलब? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सारे एजाज़ात पहले ही अता कर दिए गए, हर एतबार से आप अव्वल हैं, लेकिन ऐलान नबूवत के एतबार से आपको सबसे आखिर में भेजा गया। यहाँ भी एक बात है, यहाँ भी एक बात है। पहले जितने नबी आए उनको नबूवत भी अता की और उनको ये भी कहा कि मेरे हबीब के बारे में बताओ, बल्कि उनसे तो इकरार लिया गया, कालू अक़ररना। इसके तहत वो नबी भी आए तो मेरे नबी का चर्चा करते रहे, सबसे आखिर में हुजूर आए। इसलिए फरमाया कि पहले ऐलान करते रहे कि अब दूल्हा आ रहा है। 12 रबीउल अव्वल को ये दूल्हा दुनिया में जलवागर हो गया। आवाज समझ आई है? लेकिन अगली बात भी सुनिए ना। बिअसत के एतबार से हुजूर आखिर हैं, तो मैं यहाँ एक मसला कर लूं। अब देख लेते हैं मसला आपको भी समझ आता है कि नहीं आता है। नबी पाक की शान सब नबियों से ज्यादा है कि नहीं बताइए? जिसको शक है वो ना बोले, गूंगे बंदे को छुट्टी है। जिसको नबी पे नाज है वो बोले हमारे नबी की शान सबसे ज्यादा है। तो जब सबसे ज्यादा है तो आप आखिरी हैं, आखिरी होकर भी ज्यादा है। कहाँ आखिरी बंदे की भी शान होती है? ये कहना कि जो आखिरी हो उसकी शान नहीं। तो मैंने कहा वो बंदे अपनी अकल का इलाज कराएं जो कहते हैं कि पहला खलीफा अली है, आखिरी होने में शान नहीं है। अगर मेरा नबी आखिर में आए तो शाने हैं, अली आखिर में आए तो शाने क्यों नहीं है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिसके अपने हाथ हैं उठा के बोल सकता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बैठो जरा, समझ आ रही है? इस बात को समझिएगा, आखिर में आने वाले को कमजोर ना समझा करें। ये जो आखिर में आया ये तो अली है, अल्लाह का शेर है, मेरा किबला दिल, मेरा काबा जां है। समझ आ रही है? मेरे महबूबे पाक ने जो तरतीब रखी है ना, इसको जो उल्टा करता है उसकी हर शय उल्टी हो जाती है। बल्कि उसका गंदा इतना चेहरा हो जाए उसको देख के उल्टी आती है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है ना।
اور جو ترتیب سیدھی رکھتا ہے، سنیوں کے ایک ایک عالم کا چہرہ دیکھ لو تمہیں لطف ہی آ جائے گا۔ ترتیب کو سیدھا رکھو، تمہاری عرشہ سیدھی رہے گی۔ آ جاؤ پھر اگلی بات کریں۔ حضور آخر ہیں اس اعتبار سے، بعثت کے اعتبار سے اب اللہ کے آخری نبی ہیں۔ توجہ ہے، اللہ کے نمبر 1۔ نمبر 2، بیٹھو بھائی، جلدی کرو بھائی، بڑی جلدی میں ہوں اور ابھی تو بڑا خاص سبق چھڑنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان مجھے اللہ، آپ پسینہ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بندے ڈلے پہ گئے، اتنی جلدی میں تھوڑی جان کوئی نہیں چھڑنی مگر تگڑے ہو جاؤ ذرا، تگڑے ہو جاؤ سارے، چھوٹے چھوٹے چھڑ کے بیٹھو۔ حضور آخر ہیں ایک اعتبار سے۔ دوسرا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آخری ہے، اس اعتبار سے بھی حضور آخری، کہ میرا دین آخری دین ہے، میرے دین کے بعد کوئی دین آ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے، اس اعتبار سے بھی حضور آخری ہے کہ میرے آقا کی امت کے بعد کوئی امت آ سکتی۔ سمجھ آئی ہے گرامی قدر حضرات؟ اس اعتبار سے حضور آخر ہیں۔ هو الاول، میں بتا چکا، هو الاخر یہ ہے بعثت کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے، اعلان کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، امت کے اعتبار سے۔ یہ سبق یاد رکھ لو، حضور آخر ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی سننا، والظاہر، فرمایا ہمارے حبیب ظاہر بھی ہیں۔ ظاہر ایسے ہیں، انسان تو انسان، جانور بھی مصطفیٰ کو جانتے ہیں یار، صدقے جاؤں، انسان تو انسان، جانور تو جانور، بابا پتھر بھی جانتے ہیں۔ ابو جہل تو مٹھی میں لے کے آیا تھا نا، بند کر کے لایا تھا نا، حضور نے فرمایا میں بتاؤں کہ وہ بتائے میں کون ہے؟ حضور ظاہر ہیں، ظاہر ہیں تو پھر ایسے ظاہر ہیں۔ بلکہ اگر آپ فلسفہ قرآن مجید کو پڑھیں تو قرآن مجید نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بعثت اقدس و انور سے پہلے جتنے یہودی اور عیسائی تھے، جب وہ کافروں سے جنگ لڑتے تھے تو وہ نبی پاک کا وسیلہ دیتے تھے، اللہ انہیں پھر فتح عطا کرتا تھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یستفتحون علی الذین کفروا، وہ فتح حاصل کرتے تھے ان لوگوں پر جو کافر، کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، وہ وسیلہ دیتے تھے، فتح حاصل کرتے تھے۔ اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھو، وہ کہتے تھے یا اللہ، یہ تفسیروں نے لکھا ہے، تمام تفسیروں نے لکھا ہے، وہ کہتے تھے یا اللہ اس نبی کا واسطہ جو سب سے آخری ہے